Hello, all my dear students. Good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, welcoming you to all once again on the behalf of Subrat Singh Children Academy, Zaunpur. And as you know, at present, your chapter number 3, Human Reproduction, is running. And due to certain reason, I was not able to record the video. And after a long time, nearly after 10 to 15 days, I am recording the video. And because we all are just staying at our homes and just helping the nation to fight against the coronavirus, and all the school colleges as per the government orders are not open yet. So we are patiently waiting for the reopening and restarting of the offline classes. Till then, I am here for a new video that is related to female reproductive system, because in previous videos, as you know, we have discussed about male reproductive system as well as a particular most important event, that was spermatogenesis and its hormonal control, and we have also discussed about the structure of the male gamete. So without wasting the time, we will start with female reproductive system. And you all are aware about that in male reproductive system, there was primary sex organ and secondary sex organ, as well as there was certain glands and external genitalia. So in the same manner, here all those things will be there. So how? Let's see. So this is the what? Female reproductive system. Here we can observe what? क्या क्या हमको देखने को मिलेगा बेटा? We are going to observe primary sex organ. Okay. Similarly, we have discussed in the case of male reproductive system. We are going to discuss about the secondary, we can write here secondary sex organs. We have written here organs. It means that it will be more and this will be single. And then there will be certain kind of glands, and in the last there will be external genitalia. Okay, so let's see one by one. In the case of females, the primary sex organ, that is what? Ovary. Ovary. And this ovary is what? Paired. Okay, now we are going to discuss about the secondary sex organ. In secondary sex organ, we will observe first oviduct, that is also known as fallopian tube. And then after oviduct or fallopian tube, there will be what? Uterus, that is also known as hystera, or we can write it as a womb. Okay, in the last we can observe cervix, and cervix as you know opens into vagina. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे हम vagina मेंशन कर सकते थे और इवन हम कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है बेटा. अब आते हैं बेटा ग्लैंड्स पे. जैसे हम लोगों में आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि हम लोगों में कौन कौन सी ग्लैंड्स थी? कॉपस ग्लैंड्स थी जो कि लुब्रिकेंट सिक्रीट कर रही थी. इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड थी, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास सेमिनल वेसिकल भी था. लेकिन यहाँ पे जो हमारी कॉपस ग्लैंड है उसी से मिलती जुलती यानी सेम फंक्शन, जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हो बार्थोलिन्स ग्लैंड. बार्थोलिन्स ग्लैंड. ओके बेटा, यहां से हमको कौन सी ग्लैंड देखने को मिलेगी? बार्थोलिन ग्लैंड. और इस ग्लैंड का दूसरा नाम भी आपको मालूम है. दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड. बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड. एंड एज यू नो कॉपस ग्लैंड वाज आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. और उसी तरह से हम यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड को क्या कह रहे हैं? बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं. इसके साथ साथ बेटा एक ग्लैंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मैमेरी ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड होती है ये? मैमेरी ग्लैंड. एंड दिस मैमेरी ग्लैंड इज प्रीमियर कैरेक्टर ऑफ मैमल्स. जैसे कि हम लोग क्या हैं? मैमल्स हैं. तो मैमल्स के कुछ जो प्रीमियर कैरेक्टर हैं जो उनको मैमल्स बनाते हैं, जैसे एक उसमें से मोस्ट प्रीमियर है मैमेरी ग्लैंड का प्रेजेंस होना. ठीक है, अब ये मैमेरी ग्लैंड बेटा मेल और फीमेल दोनों में मिलती है, लेकिन ये मेल में इनएक्टिव होती है और ये फीमेल में एक्टिव होती है. जब हम आपको पढ़ाएंगे मैमेरी ग्लैंड के बारे में तो बताऊंगा मैं आपको कि एक तरह की ये मॉडिफाइड स्वैट ग्लैंड है, और ये कहाँ? फीमेल्स में मिल्क के सिक्रीशन और उसके रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया. इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया जैसा कि हम लोगों ने देखा था
कहाँ मेल में कि केवल एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया था, दैट वाज पीनस। लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखा है, लेकिन जो मेजर कैटेगरीज आएंगी वो कौन सी आएंगी, एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा बेटा मॉन्स प्यूबिस। कौन सा देखने को मिलेगा, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद हम देखेंगे लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा के बाद आप देखेंगे लेबिया माइनरा, और लेबिया माइनरा के बाद आप देखेंगे क्लिटोरिस। ठीक है, सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सो आई होप दैट दिस आउटलाइन विल हेल्प यू टू इमेजिन वेरियस पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now we will discuss in very detail about all these parts one by one. So straightforward, I am moving towards the ovary, and that is also known as primary sex organ, and why certain things are categorized on the basis of primary and secondary sex organ. We have discussed in the previous videos in the male reproductive system that if any organ directly involved in the production of gamete, that will be categorized as a primary sex organ. यानी ओवरी क्या करती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए, और उस फीमेल गैमीट का नाम होता है बेटा एग, या उसी को आप कहते हो ओवम, या उसी को आप कहते हो ऊटिड। जब पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा oogenesis का, जो कि प्रोसेस है फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन का, तो ये सारे टर्म्स आपको और क्लियरली बताए जाएंगे। तो ओवरीज को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हैं किसमें, गैमीट के प्रोडक्शन में, और उसके साथ साथ ये सर्टेन स्टेरॉयडल हार्मोन्स को सिक्रेट कर रही हैं, और उन स्टेरॉयडल हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल्स में रेगुलेट करते हैं। आप सभी को मालूम है ओवरीज दो होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस क्या था बेटा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल था, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर था, लेकिन यहाँ पे ओवरी कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं है, वो अंदर है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या कोई आपसे पूछ भी सकता है कि भाई टेस्टिस बाहर क्यों है, ओवरी अंदर क्यों है, जब दोनों क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल और फीमेल्स में। तो आपको ये बताना है कि जो मेल है उसमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस है मेल गैमीट के फॉर्मेशन का, उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओवरीज की, तो ओवरीज के केस में ऐसा नहीं होता है, और ओवरीज के केस में बॉडी टेम्परेचर जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो है, उसी टेम्परेचर पे जो फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन है वो हो जाता है। क्योंकि जो ओवरी में रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्टिस के रिसेप्टर्स होते हैं, अब ये रिसेप्टर की बात क्या आई, ऐसे रिसेप्टर जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ने मान के चलते हैं FSH हार्मोन को निकाला, अब उस FSH हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होंगे, और वो रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक नॉर्मल एक बिहेवियर करेंगे या एक नॉर्मल कंडीशन में ही वर्क करेंगे। तो जो टेस्टिस के केस में हमारे रिसेप्टर्स हैं बेटा किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पिक करने के लिए, वो सीधी सी बात है उनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इन जनरल आपके लेवल पे जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, जब आप पीजी करेंगे MSc वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपके लेवल पे इतना ही है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता है, इस वजह से टेस्टिस बाहर है और ओवरी कहाँ है, अंदर है। क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि oogenesis प्रोसेस जो कि ओवम के फॉर्मेशन का है उसके लिए भी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज थिंग्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन द नोट मेकिंग प्रोसेस, एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, और आज हम केवल ओवरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे किसके बारे में, ओवरीज के बारे में। हाँ ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बोर होना भी नहीं है क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम है बेटा, और हमें मालूम है कि आपके पास बेटर प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, लेकिन हाँ जो चीज़ें आपको एक नॉर्मल वे में मिलती हैं, वैसे भी आज की कंडीशन क्या चल रही है, हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बेटा अपने आप को नेचर से बहुत दूर कर लिया। आज सिचुएशन क्या है, नेचर फिर हमको उसी तरफ भेज रहा है, तो हम कितना भी डिजिटल हो जाए, कितना भी क्या हो जाए बेटा ना, हमारा मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है ना, हमेशा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। तो ये जो ट्रेडिशनल
मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूजिंग द स्मॉल व्हाइट बोर्ड, डोंट वरी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। और मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बेटा ना, तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ओवरेज मैं यूनिक पॉइंट आपको बताऊंगा जो ओवरेज के बारे में है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, लेकिन हाँ उसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चिंता मत करिए, वो पूरी तरह से आपको समझ में आएंगे। ओवरेज के बारे में आपको जानना ये जरूरी है कि ओवरेज कितनी होती है, 2 इन नंबर होती है, मीन्स दैट दीज आर व्हाट, पेयर्ड। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि भाई 2 ओवरीज हैं, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। ओवरीज आर पेयर्ड एंड दे रिलीज द फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब क्या हुआ, इन लोगों में दोनों ओवरीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मान के चलते अगर 1 महीने में लेफ्ट वाली ओवरी ने एक ओवम को बनाया, तो हो सकता है अगले महीने में राइट वाली ओवरी बनाए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 महीने में लेफ्ट करेगी तो अगले वाले में राइट करेगी, अगले वाले में राइट किया तो अगले वाले में लेफ्ट करेगी। हो सकता है 6 महीने तक एक ही ओवरी बना ले फीमेल गैमेट को, फिर ये भी हो सकता है साल भर बनाए, उसके बाद अगली ओवरी फिर बनाना शुरू कर दे। लेकिन हाँ, ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, आपको ये जानना भी जरूरी है कि ओवरीज रिलीज द ओवम साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब एक बार लेफ्ट ने किया तो अगली बार पॉसिबिलिटी है कि राइट वाली करे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर महीने में ये क्या करें, एक्सचेंज करें, ठीक है। सो दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म फीमेल गैमीट, दे फॉर्म फीमेल गैमीट, और इस फीमेल गैमीट का नाम है ओवम, जो कि क्या होता है, नॉन मोटाइल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, स्पर्म और ओवम का ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से मोटाइल और नॉन मोटाइल कौन है, तो आप बताओगे ओवम नॉन मोटाइल है और स्पर्म क्या है, मोटाइल है। मैंने बताया था उसके पास टेल होती है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, तो फीमेल गैमीट बनाएगा। इट मीन्स दैट दिस रोल इज ऑफ गैमीटोजेनिक फंक्शन। इट मीन्स दैट ovaries has 2 kind of functions. The function number 1 gametogenic and the function number 2 एंडोक्राइन। कहने का मतलब ये गैमीट भी बना रही है और हार्मोन्स भी रिलीज कर रही है। तो दूसरा ही क्या करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को रिलीज करती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब उन स्टेरॉयड हार्मोन्स में जो चीफ हार्मोन है उनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ बुक्स में OES लिखा हुआ है तो चिंता मत करिएगा, एस्ट्रोजन वो भी है, एस्ट्रोजन ये भी है, दोनों 100% सही हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों हार्मोन्स का रोल हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, बाकी डिटेल में हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, यानी फीमेल की तरह दिखती है, उसका रीजन क्या है, एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई। इसका मतलब जो यूटेरस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है उसको मोटा बनाने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। और जब मोटी हो जाएगी दीवार तो प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट करेगी। ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी ये स्टेरॉयड हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ये किससे डेराइव होते हैं, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किससे, कोलेस्ट्रॉल से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, आपके नीट वगैरह में या हर लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेम ऑफ द ग्लैंड दैट रिलीज स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है बता सकते हो ओवरीज, लेकिन क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया गया, नेम ऑफ द स्टेरॉयड ग्लैंड्स, नेम ऑफ द स्टेरॉयड ग्लैंड्स, तो अगर आपसे कभी स्टेरॉयड ग्लैंड का एग्जाम्पल पूछे तो बिल्कुल आंख बंद करके बताइए ओवरी, ठीक है। इसके बाद क्या बताओगे, टेस्टिस। भाई ओवरी और टेस्टिस दोनों क्या करते हैं, दोनों का एक ही काम तो है, ये गैमीट बनाएंगे और गैमीट बनाने के साथ साथ स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज करेंगे, और इसके साथ साथ एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस, ये क्या है, स्टेरॉयड ग्लैंड कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब अगला पॉइंट, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, बाकी चीजें आपको एनसीईआरटी से कोरिलेट करते हुए चलना है, ध्यान ये दीजिए ना। अगर हम सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आप बोर हो जाओगे, वो मैं होने नहीं देना चाहता हूँ, ठीक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एनसीईआरटी आप खोल के रखो,
मैंने भी ओपन करके रखी हुई है, ऐसा नहीं है। तो कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो मैं भी एनसीईआरटी में देखता हूँ। तो ध्यान ये देना है कि एनसीईआरटी आपने ओपन कर ली है, लाइन टू लाइन पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चलिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में छोड़ो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। व्हाट्सएप करो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे केवल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा ना पीडीएफ के फॉर्म में। जो आज के लेक्चर का है वो आपको नोट्स मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान देना है, ओवरीज developed during 11th to 12th week of pregnancy। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ओवरीज कब डेवलप होती हैं? 11वें से 12वें हफ्ते में। रिकॉल करिए, टेस्टिस कब डेवलप हो रहा था? 7वें से 8वें हफ्ते में। लेकिन ओवरीज कब डेवलप हो रही है? 11वें से 12वें हफ्ते में। ठीक, अब ये जो ओवरीज डेवलप हो रही है, ये किससे डेवलप हो रही है? ओवरीज डेवलप हो रही है फॉलिकुलर सेल से। किससे डेवलप हो रही है? फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फॉलिकुलर सेल्स से फॉलिकल्स क्या होते हैं? अरे भाई, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर सराउंड करती हुई ढेर सारे सेल्स हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? वो फॉलिकल है। यानी किसी एक कैविटी को सराउंड करने वाली कई सेल्स हैं या कई लेयर हैं, चाहे वो एपिथेलियल सेल्स हों या थीका सेल्स हों, वो क्या है? फॉलिकल है। मान के चलते हैं ये कोई कैविटी थी बेटा, और इस कैविटी को घेर के रखा हुआ था अलग अलग तरह के सेल्स ने, तो इसको हम बोलेंगे फॉलिकल। ये क्या है? फॉलिकल। इन फॉलिकल्स ने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को घेर के रखा हुआ है और इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। तो फीमेल्स में जो ओवरीज का फॉर्मेशन होने वाला है वो इन्हीं फॉलिकल सेल्स से होने वाला है, और ये फॉलिकल सेल्स लेटर और आगे चल के आपका जो फीमेल गैमीट है वो भी बनाएंगी। और ये फॉलिकल सेल्स खुद किससे बनती हैं? यॉर्क सैक से बनती हैं। अब यॉर्क सैक क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? अभी आपको लेटर ऑन जानना है, जिसमें हम एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस, यॉर्क सैक, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और चिंता वाली बात नहीं है। तो डेवलप हुई कब? 11वें से 12वें वीक में। कहाँ? प्रेगनेंसी के। टेस्टिस कब डेवलप हुआ था? 7वें से 8वें हफ्ते में। किसके? प्रेगनेंसी के। अब बेटा कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी ने कहा 2 to 4 सेंटीमीटर। कितनी होती हैं ये? 2 से 4 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, इनके फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये क्या कर रही हैं? फीमेल गैमीट, और इसके साथ साथ स्टेरॉयड हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं। तो 2 से 4 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। कहाँ? आपके एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती हूँ। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिचुएटेड इन योर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। मान के चलते हैं ये हमारी बैकबोन, तो एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। आप सभी को मालूम है बेटा कि जो ओवरीज हैं ये फ्रीली क्या होती हैं? ऐसा तो है नहीं कि ये लटकती रहेंगी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे अटैच टू एब्डोमिनल कैविटी by a ligament called mesovarium। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपकी ओवरीज हैं ये आपकी बॉडी कैविटी से अटैच रहे, इसके लिए अलग अलग तरह के लिगामेंट होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हम आपको बताएंगे कि ब्रॉड लिगामेंट क्या है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, मेसोवेरियम क्या है। ये सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके लिए? आपकी ओवरीज के लिए, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि ये कौन? ओवरीज आपके एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहे। इसके साथ साथ जो फैलोपियन ट्यूब है वो यूटेरस के आसपास रहे, अटैच रहे, उसके लिए भी अलग अलग तरह के क्या है? लिगामेंट्स हैं। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट थे। अब इन पॉइंट्स को हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, एंड दैट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बोर्ड एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको जो स्लाइड दी जाती है, कब? जब आप स्पॉटिंग करेंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, 7 स्पॉट आपको दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब वो जो स्पॉटिंग का वर्क होता है, उस स्पॉटिंग के वर्क के लिए आपको अलग अलग तरह के स्पॉट दिए जाते हैं। तो उसमें से 2 स्लाइड हम एटलीस्ट देते हैं। उसमें से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, इसके साथ साथ और भी स्लाइड्स हैं जो आपको एज ए टीएस दी जाती है, जिसमें हम ब्लास्टोरा ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो हमारे पास अवेलेबल है लैब में वो कंडीशन होती है, बट टेस्टिस और ओवरी में से एक डेफिनेटली होती है। तो हम यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी भी देखेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आइए देखते हैं फटाफट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, एक रफ डायग्राम तुरंत बनाता हूँ आपके लिए बहुत तेजी के साथ। जस्ट क्विकली वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर आवर कन्वीनियंस। देयर आर 2 आर्म्स। इन आर्म्स को थोड़ा सा और नीचे की तरफ लाते हैं, एंड अगेन
दिस वन, और इसको थोड़ा सा ओके इन द सेम मैनर वी विल ऑल्सो ड्रॉ हियर एंड दिस वन, एंड देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हियर, देयर इज ऑल्सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड देन आफ्टर देयर विल बी 2 ओवरीज। ये ओवरीज कैसी होती हैं? ओवरीज होती हैं आलमंड शेप। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट जानना जरूरी है कि ओवरीज कैसी होती हैं, आलमंड शेप, बादाम के जैसी होती हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम है अलग अलग लेयर्स होती हैं यूट्रस में, तो वो लेयर्स हम आपको यहाँ पे बना देते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। इसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं सेम मैनर में। ओके इसके बाद क्योंकि आपको मालूम है कि यूट्रस में कितनी लेयर्स हैं, देयर आर टोटल 3। तो दिस वन, ये मस्कुलर लेयर आपको दिख रही है यहाँ से। ओके नाउ दिस विल कंटिन्यू एंड नाउ they will terminate, all these structures are going to terminate। और ये हम इसको यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ पे लाके all these are just going to terminate here। इसके बाद यहाँ पे बेटा क्या हो जाती है, ये जो ओपनिंग है ये बंद कर दी जाती है, लेकिन हम इसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू लेबल द डायग्राम। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था, एंड दीज लिगामेंट्स आर नोन एज मेसोवेरियम। इसी को हम बोलते हैं क्या, मेसोवेरियम। एंड दीज ओवरीज आर ऑल्सो अटैच हियर टू द यूटरस। और ये भी कौन से होते हैं, ये भी लिगामेंट्स होते हैं, अभी हम आपको लेटर ऑन और डिटेल में बताते हैं। लेट्स लेबल द डायग्राम। दिस ट्यूब, जो दोनों ट्यूब आपको एक्सटेंड करती हुई दिख रही हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, टोटल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फालोपियन ट्यूब। एंड नाउ दिस फालोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट्स। ये जो नैरोअर पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, दिस वन इज नोन एज एम्पुला, एंड दिस वन इज नोन एज infundibulum। Okay, so fallopian tube divided into 3 parts. What are the function of all those 3 parts? यहां से आप देख रहे हैं इस्थमस जो कि नैरोअर पार्ट है, ये fallopian tube को यूटरस से अटैच करा रहा है। एम्पुला जो मिड पार्ट है fallopian tube का, उसको हम एम्पुला कहते हैं, और इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो fallopian tube तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, लेकिन fallopian tube में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट इज व्हाट, एम्पुला। एंड देन आफ्टर देयर इज व्हाट, इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम है बेटा, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये फिम्ब्री क्या करती है, दिस फिम्ब्री हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम। सपोज ये आपका जो आलमंड शेप स्ट्रक्चर था जिसको हमने कहा ओवरी, इस ओवरी ने फीमेल गैमेट को बनाया, दैट इज ओवम। अब इस ओवम को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये फिम्ब्री करेगा। कैसे करेगा भाई, ओवरी यहाँ है, फिम्ब्री यहाँ है, तो ओवरीज अगर एग या ओवम को बना रहे तो नीचे गिर जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो फिम्ब्री है ना इसमें मूवमेंट होता है। अब उस मूवमेंट की वजह से सक्शन पुल क्रिएट होता है, और जैसे ही ओवरीज ने रिलीज किया ओवम को, उस सक्शन पुल की वजह से वो कौन, फीमेल गैमेट ऊपर की तरफ ले लिया जाता है, और फिर वो इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला में पहुंचता है। इधर मेल डिपॉजिट करता है किसको, सीमेन को, उसमें स्पर्म होता है, वो तैरता हुआ इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पे आएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना। ये बेटा आपको ये नीचे की ओपनिंग, इसको हमने कहा वाजाइना, ये चीजें आपको दिख रही हैं सर्विक्स, और आपको अब ये टोटल स्ट्रक्चर यहाँ से लेके और जो यहाँ तक दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, यूटरस कहेंगे। अब इस यूटरस के पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं। दिस आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आपको बाहर की तरफ एकदम दिख रही है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। दिस वन इज नोन एज व्हाट, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम प्रोटेक्टिव, भाई पी से स्टार्ट हो रहा है पेरी, और पी से ये है प्रोटेक्शन। जो बाहर की लेयर कभी भी कहीं भी आए ना तो आंख मूंद के प्रोटेक्शन लगाओ यार। उसके बाद दूसरी लेयर ये मस्कुलर होती है, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। कभी भी वर्ड अगर आए मायो तो समझ लीजिए मसल्स। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, एम फॉर मायो एंड एम फॉर मस्कुलर, यानी इसमें मस्कुलर अगर ये है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो बहुत कुछ आगे होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। अंदर की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर आपको दिख रही हैं। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है बेटा कंपटीशन में कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, आपको दे देगा ऑप्शन में, कहेगा सीक्वेंस से लगाओ, इनके फंक्शन क्या है। सो पेरीमेट्रियम प्रोडक्टिव, मायोमेट्रियम क्या करती हैं, इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन क्रिएट होता है और डिलीवरी प्रोसेस में हेल्प करती हैं। एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, और ये टूट जाती है कब, अगर
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब, और मेंसेस होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान ये देना है, कभी कभी इनके सीक्वेंस को याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ करना नहीं है यार, एक कोड आप याद रखो PME, यानी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एजुकेटेड है, तो PME यानी प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड। आपके प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं जो भी हो, मोदी जी हैं अभी फिलहाल, तो प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड हैं आपके, तो उस एक पर्टिकुलर कोड के माध्यम से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखी। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो यूटरस है ना, इस यूटरस में क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यानी यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट करेगा, इम्प्लांटेशन के बाद जो बेबी डेवलप करेगा 9 मंथ, जो जेस्टेशन पीरियड है इसी में होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या होना है, जो आपको मालूम है ना, यहाँ पे जो एक ओपनिंग होती है बंद होनी बहुत जरूरी है, अगर ये बंद नहीं होगी तो बेबी नीचे एक्सपेल कर जाएगा। तो सबसे बड़ी चीजें आपने देखी होगी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है पहले क्या थे, टेट्रापोड्स थे, उसके बाद हम लोगों में क्या हुआ, बाइपेडल मोशन हुआ, और उसकी वजह से अब हम 2 पैरों पे चलते हैं और एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बेटा डिसएडवांटेज हुआ, इवोल्यूशन तो हुआ लेकिन इवोल्यूशन की वजह से हम लोगों में एक डिसएडवांटेज ही आया कि आपने देखा होगा जो टेट्रापोड्स है जैसे काउज, बफेलोज, इनमें क्या होती है, प्रेगनेंसीज जो है स्टमक के द्वारा सपोर्टेड होती हैं, क्योंकि वो 4 पैरों पे चलते हैं। इसी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप होता है, इस वजह से जन्म के कुछ ही समय बाद वो चलने लगते हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोग क्या है, बाइपेडल मोशन की वजह से, बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से एक नुकसान ये हुआ कि सीधी सी बात है, यूट्रस जो आपके एक अंडे के साइज की जैसी होती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तब, और अगर वो प्रेगनेंसी हो गई तो साइज उसकी बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एक अंडे के साइज के बराबर होती है। किसकी साइज, यूट्रस की बहुत बड़ी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर बेबी 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक डेवलप कर रहा है, नॉर्मली 2.5 किलो उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए, 2.5 kg से लेके 4 kg 3.5 kg तक होते हैं नॉर्मल। लेकिन मान के चलते हैं कहीं कहीं अब नॉर्मलिटी है तो 2 kg का, और अगर और ज़्यादा अब नॉर्मलिटी तो 5 kg तक बच्चे हो सकते हैं। तो आप खुद इमेजिन करो कि 5 kg का है, यूट्रस में है, और एक छोटा सा यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है और इसकी वजह से ये ओपनिंग बंद हो गई, तो ये चांसेस हैं बेटा मिस करे इसके, ठीक है। इस वजह से जब मल्टीपल बेबीज होते हैं, चाहे वो ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो, तो वहाँ पे क्या होता है, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक एडवांटेज ये है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोगों में बच्चे छोटे क्यों होते हैं, हम लोगों में बच्चे इतनी देर से क्यों चलना शुरू करते हैं, हम लोगों में क्या होता है, नंबर ऑफ चाइल्ड जो होते हैं वो एक ही क्यों होते हैं, जबकि आपने देखा होगा डॉग्स, कैट, पिग, ये इन सब में बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12 बच्चे हो जाते हैं एट ए सिंगल टाइम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टेट्रापोड्स हैं, उनके प्रेगनेंसी सपोर्टेड है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वहाँ पे एक से अधिक ओवम भी बन रहे हैं। हम में केवल एक ही ओवम बनता है, लेकिन हमने जो ये डॉग और कैट वगैरह का एग्जांपल आपको दिया, यहाँ पे एक से अधिक ओवम बनते हैं। आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एक से अधिक ओवम बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों में एक ही बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों में जो इन्फेंट्स हैं उनकी साइज बहुत कम होती है। रीज़न क्या है, प्रेगनेंसी हम लोगों में सपोर्टेड नहीं है, हम लोग अपने 2 पैरों पे चलने वाले हैं, तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपने काउज बफेलोज के केस में देखा, वहाँ पे ऐसा नहीं है, बेबी का साइज़ बहुत बड़ा होता है और पैदा होने के कुछ ही समय बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जबकि हम लोगों में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाता है, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक लेते हैं हम लोग पैरों पे खड़े होने में। इस वजह से बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एक आउटलाइन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमने डिटेल में स्टडी किया किसके बारे में, ओवरीज के बारे में। अब हम आपको बताएंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, और आज का लेक्चर फिर खत्म करेंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे टीएस ऑफ ओवरी। सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं मैं, आपको यहाँ से सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो हियर दिस इज जस्ट आउटलाइन एंड देयर इज व्हाट जर्मिनल एपिथेलियम, और इस जर्मिनल एपिथेलियम का जो एग्जैक्ट नेम है इसका होना चाहिए सरफेस एपिथेलियम, यानी हम 12th स्टैंडर्ड तक इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और जैसे जैसे हम आगे हर स्टडी करेंगे फिर इस जर्मिनल एपिथेलियम का नाम क्या हो जाता है, सरफेस एपिथेलियम। और इसके बाद बेटा सरफेस एपिथेलियम के बाद एक लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये आपका है जर्मिनल एपिथेलियम, और ये हमने बनाया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, या इसी को बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है।
ध्यान देना है कि ये जो आपका जर्माइनल एपिथेलियम है, इसी के पास जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, और ये आपको जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है ये आउटर मोस्ट लेयर है किसके बाद, जर्माइनल एपिथेलियम के बाद, जो कि इंश्योर कर रही है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ध्यान ये देना है, हमने बताया कि ओवरीज में बेटा जब हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन तो दो चीजें हमको दिखेंगी, एक आउटर रीजन दिखेगा और एक इनर रीजन दिखेगा। तो अगर हम देखें एक आउटलाइन बनाएं तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जो ये बाहर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, कॉर्टेक्स, और जो अंदर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला। ऊपर का जो बाहर वाला पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है, अंदर क्या है, मेडुला है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो इसको कुछ इस छोटे से एरिया में सीमित कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं दिस रीजन, आउटर मोस्ट रीजन जो दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि जो कॉर्टेक्स बन रहा है और मेडुला बन रहा है किससे बन रहा है, भाई ये सभी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बन रहे हैं। ध्यान देना है, कॉर्टेक्स को बनाने का काम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो कॉर्टेक्स है ये किससे बना हुआ है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। एंड मेडुला इज मेड अप ऑफ एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत जो हायर लेवल के वहां पर पूछा जा सकता है। आउटर मोस्ट रीजन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी, कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट रीजन मेडुला, बोथ आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मेडुला इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। रिमेंबर इन मेडुला रीजन देयर इज अ सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी आपका जो मेडुला है इसमें क्या मिलेंगे, आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी, इसके साथ साथ क्या मिलेंगी, नर्व्स मिलेंगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब जो कॉर्टिकल रीजन है इस कॉर्टिकल रीजन में सर्टेन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हीं चेंजेस की वजह से जो फीमेल गैमीट है वो बनेगा। वो चेंजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में ओवरीज का डेवलपमेंट 11वें से 12वें जो सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है या हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं यॉर्क सैक से, जिनको हम बोलते हैं प्रीमोडियल, यानी प्रीमोडियल फॉलिकल्स। वो क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, या उसी को हम बोलते हैं प्रीमोडियल oocyte। क्यों, क्योंकि जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स या oocyte हैं, मान के चलते हैं ये कोई हमारा स्ट्रक्चर था और इसको एक कैविटी को घेर कर रखा हुआ था फॉलिकल्स सेल ने, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा अंदर वाला, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रीमोडियल oocyte। कहने का मतलब फीमेल्स में जो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है या oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो गया। जबकि हम लोगों में क्या होता है मेल्स में कि प्यूबर्टी के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 13 ईयर्स के बाद, लेकिन फीमेल्स में जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है उसी समय फीमेल गैमेट का बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हुए, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्रीमोडियल oocyte। प्रीमोडियल क्योंकि वो पहले से ही बने हुए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फॉलिकल्स बनते रहते हैं, लेकिन जन्म के बाद ये बनना प्रोसेस, ये बनने की प्रोसेस रुक जाती है, यानी स्टॉप हो गया। फिर जब प्यूबर्टी आती है तो फिर से ये प्रोसेस शुरू होता है, यानी एक बार फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हुआ था, जन्म के बाद वो रुक गया और फिर से प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हुआ। इसी वजह से जो फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस है oogenesis, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। और हम लोगों में जो स्पर्म एक बार बनना स्टार्ट हुआ ना तो बनता ही रहता है, इस वजह से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम कंपेयर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान ये देना है कि oogenesis डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहां से हम देखेंगे ये आपका क्या है, प्रीमोडियल oocyte है। क्या है बेटा, ये प्रीमोडियल oocyte। अभी हम डिटेल में सारा प्रोसेस आपको और बताएंगे इन चीजों को इरेज करने के बाद। तो ये हमारा क्या है, प्रीमोडियल oocyte। अब इस प्रीमोडियल oocyte में चेंजेस होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल में। अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये बेटा प्रीमोडियल oocyte है, दिस वन प्रीमोडियल oocyte, इसको जो घेर के रखा है एपिथेलियल सेल्स ने घेरा हुआ है। अब यही एपिथेलियल सेल्स जो आपका ये कौन है, ये प्रीमोडियल oocyte से प्राइमरी oocyte बना हुआ है। ये सबसे पहले क्या है, प्रीमोडियल oocyte, प्रीमोडियल oocyte से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो बना हुआ है, इस प्राइमरी oocyte को कौन है, ये अंदर वाला प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte को जो घेर कर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte को अगर ग्रैनुलोसा सेल्स ने घेर के रखा हुआ है तो इस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है प्राइमरी फॉलिकल। ये हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, मैं साइकिल जब बताऊंगा। प्राइमरी फॉलिकल, अब ये बेटा प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा,
सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। अंतर क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स में? अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स में बेटा अंतर ये है कि प्राइमरी फॉलिकल्स में जो ग्रेनुलोसा सेल्स की संख्या थी या लेयर्स थी वो कम थी। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इनमें बाइफर्केशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थीका सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स हैं या ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनका बेटा क्या कई नाम हो सकता है। हमने बताया कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। अब इनमें डिफरेंशिएशन होगा और ये बना लेंगे थीका के लेयर्स, थीका सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक थीका एक्सटर्ना और दूसरा थीका इंटरना, यानी जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी इनमें बाइफर्केशन हुआ। क्यों बाइफर्केशन हुआ? क्योंकि एक कैविटी एंट्रम बनना स्टार्ट हुई, वो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे कि क्या रोल होता है। तो अब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरीज के अंदर हो रहा है। चेंजेस क्या है? जो नंबर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी वो बढ़ रही है, बढ़ने के बाद उनमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के रूप में बाइफर्केशन हो रहा है और बीच में एक कैविटी बनना स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर अभी भी क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब बेटा ये क्या थी? ये सेकेंडरी फॉलिकल थी। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगी? टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में जब चेंज होगी तो इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन पूरी तरह से हो गया है। अब वो दिखने लगे। कैविटी का फॉर्मेशन सेकेंडरी फॉलिकल में ही स्टार्ट हुआ, लेकिन जाके कंप्लीट कहाँ हुआ? टर्सरी फॉलिकल्स में। तो इसके अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेंगे और इसके बाहर आपको दिखेंगी ग्रेनुलोसा सेल्स। ये सारे इवेंट हम आपको और डिटेल में एक बार फिर से बताएंगे। अभी हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं। बाहर आपको दिख रहा है थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ये कैविटी बनी, इसको हमने एंट्रम कहा। अब ये प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो चुका है? सेकेंडरी oocyte में। और ये क्या है? टर्सरी फॉलिकल है। अब बेटा ये टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। मतलब ये स्पेस और बढ़ेगा। स्पेस और बढ़ने की वजह से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये हुआ और इसके साथ साथ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये हम फिर आपको बताएंगे, चिंता मत करिएगा। और अंदर जो कैविटी है इसमें अब लिक्विड भर जाता है, उसको हम कहते हैं लिकर फॉलिकुली। क्या बोलते हैं? लिकर फॉलिकुली। और अंदर अब ये जो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte। और इस सेकेंडरी oocyte को कनेक्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठा हुई है। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस oophorus, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएंगे? रप्चर। क्या हो जाएंगे बेटा? ये फट जाएंगी और फटने के बाद उसको रिलीज कर देंगी, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देंगी, ठीक। अब ग्राफियन फॉलिकल अगर फट जाती हैं, सेकेंडरी oocyte अगर बाहर आ जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम इज द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू रप्चरिंग एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यानी सेकेंडरी oocyte अगर ये जो स्ट्रक्चर था इसमें से ये वाला सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाए तो जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? येलो बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? येलो बॉडी। अब कॉर्पस ल्यूटियम ही कहलाता है येलो बॉडी। क्यों येलो बॉडी कहलाता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? कैरोटीन होता है बेटा। क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है, ठीक है। कैरोटीन के साथ साथ ल्यूटीन भी प्रोटीन, दो प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, कैरोटीन और ल्यूटीन। और इन दोनों की वजह से ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं येलो बॉडी। अब अगर प्रेगनेंसी हुई तो बेटा ये स्ट्रक्चर रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। तो अगर ये डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ तो कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, इसी का दूसरा नाम है व्हाइट बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉडी, क्योंकि ये सफेद सफेद क्रिस्टल के रूप में दिखता है। क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ से कैसे कंपटीशन में पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस में अंतर क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी कहलाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस व्हाइट बॉडी कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। और ये स्ट्रक्चर तभी रहेगा जब फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो डेफिनेशन क्या हुई कॉर्पस एल्बिकेंस की? डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज व्हाट? कॉर्पस एल्बिकेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब ये रप्चर होता है, ये कौन? ये आपकी जो है लेबल कर देता हूँ, ये टर्सरी फॉलिकल थी और ये क्या है? ये है ग्राफियन फॉलिकल। दिस वन इज व्हाट? ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है, तो रप्चर होगी अगर, तो सीधी सी बात है कुछ अमाउंट में ब्लड रिलीज होगा। तो एक स्टेज और आती है
यहाँ ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ह्यूमोरेजिकम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम क्यों, क्योंकि हीमोरेजिकम वर्ड है तो ब्लड से रिलेटेड है, तो चूंकि ये फटी तो ब्लड रिलीज हुआ, और रिलीज हुआ तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट जानना जरूरी है। जानना जरूरी क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होंगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, तो उस कंडीशन में ब्लड भी बाहर आएगा। तो इस वजह से अगर ऐसी कंडीशन है, ऑब्वियसली होती है, तो एक स्टेज और है ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम के बीच में, कौन सी, कॉर्पस हीमोरेजिकम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पे बेटा आपको दिखेंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स दिखेंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी दिखाई हुई है, अंदर की तरफ सप्लाई हो रही है। ध्यान दीजिए कि अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा तो क्या क्या दिखा हमको, यहाँ से मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओवरीज आर कवर्ड बाय द क्यूबॉइडल और क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू। मैंने ये बताया कि जो बाहर की लेयर है ये क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम या सरफेस एपिथेलियम है। अगला हमने बताया इसके पास दो चीजें हैं, जो ये पूरा स्ट्रोमल रीजन है, ये पूरा इसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इसके पास दो चीजें हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स ये बाहर वाला और मेडुला अंदर वाला, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉर्टेक्स कंटेन मैनी ओवेरियन फॉलिकल, ये आप दिख रहे हैं, एंड दैट मैच्योर एंड फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। ये देख सकते हैं आप, ये प्रीमोर्डियल oocyte था, फिर इसने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसी आपके कॉर्टिकल रीजन में हो रही हैं, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कॉर्टेक्स कंटेन्स मैनी ओवेरियन फॉलिकल दैट मैच्योर एंड फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल लाइंड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप फ्रॉम यॉर्क सैक। यानी यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ है, इसको चारों तरफ से घेर के रखा है ग्रैनुलोसा सेल्स ने, और जो कि किससे बनी हुई है, यॉर्क सैक से। जो यॉर्क सैक क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, मैं आपको बताऊंगा। ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स सेकेंडरी oocyte, मैंने बताया इसके अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte दैट चेंज इनटू ओवम आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म। ध्यान दीजिए बेटा, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है फीमेल्स में, तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। सेकेंडरी oocyte में और ओवम में अंतर है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो उस कंडीशन में वो डिजनरेट हो जाएगा, वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी मियोसिस सेकंड नहीं होगी। यानी जब कभी भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है, जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको oogenesis में फिर से बताऊंगा। तो अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाएगा ओवम में, अगर नहीं होती तो सेकेंडरी oocyte डिजनरेट हो जाएगा। वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इट रप्चर्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मैंने बताया कि ये रप्चर होगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, ठीक। अब ये सेकेंडरी oocyte चेंज होगा कहाँ, ओवम में। कब, अगर स्पर्म की एंट्री हुई मियोसिस सेकंड तभी होगी, अगर नहीं हुई तो मियोसिस सेकंड नहीं, और ये डिजनरेट हो जाएगा, ठीक। ध्यान देना है कि जो ओवरीज हैं ये कुछ लिगामेंट के द्वारा सपोर्टेड होती हैं, जिसमें एक ब्रॉड लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है और सस्पेंसरी लिगामेंट। तीन तरह के लिगामेंट होते हैं, सबका हम आपको शॉर्ट में फंक्शन बता देते हैं। जो आपका ब्रॉड लिगामेंट है ये अटैच करता है, अटैच ओवरी टू मीजोवेरियम, अटैच ओवरी टू मीजोवेरियम। आपके जो ओवेरियन लिगामेंट है ये सपोर्ट करते हैं यूटेरस को, सपोर्ट यूटेरस एंड ओविडक्ट, सॉरी ओवरी, सपोर्ट यूटेरस एंड ओवरी। एक लास्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट, अटैच ओवरी टू पेल्विक वॉल, अटैच ओवरी टू पेल्विक वॉल। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस के बाहर की हैं, बट ध्यान रखना है कि ओवरी में कुछ सपोर्टिंग लिगामेंट होते हैं, और मैंने सारे फंक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने आपको बताए ओवरीज के बारे में और इसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। अगले वीडियोस में जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।